Okay, good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We Afternoon, are sir. fine, We sir. are What fine, about sir. you? And what about you? I'm also fine, thank you. Let us discuss rest of the questions, whatever were remaining yesterday. We were discussing the questions from section B, na? How many Yes, questions sir. did how many questions did we discuss? How many questions? Sir, already two discussed? questions. So question Sir, number two three. Two questions. So 1 and 2 from the section. Is there any query, any problem with both the questions No, or sir. any questions from section A जिसको आप ना लिख पाए हो तो No, मैं sir. लिखवा दूं? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. So beta, let us discuss the next question. We have to discuss the question from section B. So we were discussing question number 3. How was Arman's treatment of his slaps different from that of his father? Beta, in the story it has been told you all, it has been narrated that कि जो अरमान के फादर हैं, जो उनका बिहेवियर है स्लैबर्स जो स्लैब्स थे, उनका बिहेवियर कैसा था? सॉफ्ट था या हार्ड था? उनके फादर का, अरमान के. Sir, soft था. Soft. बट कहने के अरमान Soft. का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, वो बहुत अच्छे से बिहेव Yes, sir. तो ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वाज द अरमांड्स ट्रीटमेंट ऑफ हिज स्लेव्स? जो अरमान का ट्रीटमेंट था, यानी उससे जो बात करने का तरीका था या बिहेवियर था उसके स्लेव्स के साथ, मतलब कैसे अलग था फ्रॉम दैट ऑफ हिज फादर? उसके पिता से अरमान का बिहेवियर जो अपने स्लेव्स के लिए था वो कैसा था, कैसे अलग था? कौन बता सकता है? Who can tell the answer of this question? Yes, Muskan. Yes, beta, tell me. Muskan, I did not getting your voice. Okay, anybody else who can give the answer of this question? Abhishek Yadav, yes, please tell. Yes, sir. Sir, Armand's treatment of his slave different from that of his father. That he was not staying at home and didn't care of the anything at home. So that Armand's treatment was some differently. Okay, anybody else who want to give the answer of this question? Who want to try? Abhishek Pandey, आप बताइए. So Armand treatments of his slaves different from that of his father because Armand treatment was very hard, but the Armand father treatment was very आप soft. मुझे हिंदी में इसका आंसर बताइए. What do you want to say, Abhishek? सर अरमंड का बिहेवियर सर सॉफ्ट था और उसके फादर का सर हार्ड. सर उसके फादर का सॉफ्ट था और सर अरमंड का सॉफ्ट था. यही अंतर था. हाँ बिल्कुल, इसमें यहाँ पे ये नहीं बोला गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि अरमान का जो बिहेवियर है उसके स्लैब्स के प्रति उसके फादर से कैसे डिफरेंट था. तो ऑब्वियसली बात है, द बिहेवियर ऑफ हिज फादर वाज सॉफ्ट टुवर्ड्स देयर स्लेव्स, towards the slavery category of the people, but the behavior of the Arman was hard towards the slavery category of the people. Okay. Yes, sir. So how you can write the answer from the story? ये तो फिलहाल एक संक्षिप्त आंसर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. In other words, how you can write? You can write Arman's father was a more indulgent. Indulgent आपके बुक में लिखा हुआ है. Indulgent मीन्स क्या हुआ था, क्या बताया गया था? Arman father was more indulgent and kind master than Arman was. ये आपके बुक में ही लिखा है. जरा देखते हैं कहाँ पे लिखा है. Where it has been written? On which page number? Did anybody find? क्या कोई खोज सकता है? ध्यान है किसी को?
हरमन के बिहेवियर के बारे में जहाँ पे बात हुई होगी वही तो होना चाहिए, ठीक है। यस, यहाँ पे अवेगनी रूल वाज स्ट्रिक्ट वन, जो हरमन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एंड अंडर इट इज नेग्रोस हैड फॉरगेटन हाउ टू बी हैप्पी, और इसके अंडर में जो नेग्रोस पीपल थे, नेग्रो पीपल की कैटेगरी के जो पीपल थे, दे हैड फॉरगेटन, वो भूल गए थे कि आखिर खुश कैसे रहा जाता है, इतना ज्यादा हार्ड था, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एज दे हैड बीन ड्यूरिंग द ओल्ड मास्टर्स इजी गोइंग एंड इंडल्जेंट लाइफ में, लेकिन मतलब एक तरीके से खुशियां भूल चुके थे अरमन के लाइफ में, जैसे उसके जो ओल्ड मास्टर है यानी अरमन के पिताजी के समय में वो बहुत इजी लाइफ जी रहे थे, या बहुत ही कृपाल, एक तरीके से इंडल्जेंट मिस होता है कृपालु, कृपा से भरपूर, यानी उनकी कृपा में, उनकी छत्र छाया में बहुत ही इजी जीवन जी रहे थे, बट अरमन की लाइफ में नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, अरमन फादर वाज अ मोर इंडल्जेंट एंड द काइंड मास्टर देन अरमन वाज। अरमन से जो अरमन के पिताजी थे वो ज्यादा इंडल्जेंट थे, वो ज्यादा कृपालु थे, वो ज्यादा लोगों के बारे में सोचते थे। So you can write the answer. Arman's father was a more indulgent and kind master than Arman was. Under him, El Abri was happy place. यानी जो अरमन के पिताजी थे, under him, El Abri was a happy place. Unlike now, when she sleeps, hardly ever smile. अभी क्या है, जो स्लेब्स हैं बहुत ही मुश्किल से हंसते हैं, बहुत ही मुश्किल से उनको हंसी आती है, वो खुश दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब उनके पिताजी थे, under his guardianship, under his leadership, El Abri was very happy place. Why it was that a very happy place? Because Arman's father was more indulgent and kind master. जो अरमन के पिताजी वो ज्यादा कृपालु थे, ज्यादा दयालु थे देन अरमन, अरमन से ज्यादा। तो इसका आंसर लिख ले जाएंगे इस तरीके से। Yes, sir. You write answer in this way. Yes, sir. Okay. Now the next question is question number 4. Question number 4 is Vedris looked at the baby. Vedris looked at the baby and then at the boy fanning him. और फिर उसके बाद उस बॉय की तरफ जो उसको फैन कर रहा था, जो उसको फैनिंग कर रहा था। And let out a cry of shock. Why? और एक तरीके से मतलब ऐसे झटके से चिल्ला उठती है, यानी शिहर उठती है, ऐसा क्यों? डेजरी लुक्ड एट द बेबी, जो डेजरी है वो बेबी की तरफ देखती है, एंड देन, और उसके बाद एट द बॉय फैनिंग हिम, और उस बॉय की तरफ देखती है जो उसको फैनिंग कर रहा होता है। एंड लेट आउट ए क्राई ऑफ शॉक, यानी एक तरीके से झटके में बहुत तेजी से चिल्लाती है, उसका नाम लेती है, नाम लेने की कोशिश करती है, और फिर अपने आप को रोकती है, और ना रोकते हुए उसका नाम ले लेती है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, तब वो पॉइंट आउट करता है, डोर की तरफ करती है, पॉइंट करती है, फिर वो बाहर चला जाता है। Yes, sir. सभी को ध्यान है, स्टोरी में ऐसा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Why? The question is why? 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 क्यों? Who can give the answer of this question? अभिषेक पांडे, रत्नेश आपको नहीं आंसर देना आता है, आप नहीं पढ़ाई करते, बताइए अभिषेक पांडे। Sir, Desiree looked at the baby and then at the boy fanning him and let out a cry of shock because her child is look like him. Okay, अभिषेक यादव, what is your answer? Yes, sir. So Desire looked at the baby and then at the boy fanning him and let out a cry of shock because after seeing both of them, she found that both of them's color was same. Muskan, what is your answer? Desiree looked at the baby and then at the boy fanning him and let out a cry of shock because when Desiree looked at the boy who was fanning, he was looking like Desiree's baby. एक्चुअल में होता क्या है, तो डेजरी के लिए वो पहला समय होता है जब वो शायद कंपेयर करती है अपने बच्चे को, एक दूसरी निगाह से देखती है, एक डिफरेंट लाइट यानी डिफरेंट वे से देखती है।
उसके पहले वो खिला, वो एक तरीके से मतलब वो कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसका बेबी है बस उतना सोच रही होती है। लेकिन उस दिन जब वो अपने बेडरूम में बैठी हुई होती है तो डेजरी जो फैनिंग कर रहा होता है बच्चा उसको देखती है और अपने बच्चों को देखती है, तो उन दोनों में सिमिलरिटीज दिखती है। क्या सिमिलरिटीज दिखती है? द कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन की एक सिमिलरिटी दिखती है। और एक तरीके से वहां पे वो इस बात को महसूस करती है, ज्यादा फील करती है। उसके पहले वो ज्यादा इस सब बातों पे उसको स्किन से कलर पे नहीं ध्यान दी होती है, बट उस समय वो ध्यान देती है, रियलाइज करती है, थोड़ा फील करती है, और ऐसे में वो शॉक्ड हो जाती है। तो यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस वन। लुकिंग एट द बॉय, द सिमिलरिटी बिटवीन हिम एंड द बेबी सडनली बिकेम अपरेंट टू डिजायर। लुकिंग एट द बॉय, बॉय की तरफ देखते हुए, द सिमिलरिटी बिटवीन हिम एंड द बेबी, सिमिलरिटी बिटवीन हिम एंड द बेबी suddenly became apparent to desire। अब वो तरीके से similarly became आप इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, तो looking at the मतलब in other language what in simple language how you can write the answer of this one, इसको आप छोड़ दीजिए, आप लिख सकते हैं कि Desiree looked at the baby and then at the boy fanning him and let out a cry of shock. Why? Because when she looking at the baby, when she was looking at the baby, she noticed the similarity between him and the baby, which made her suddenly to cry with shock. She looked, she was looking at the boy and noticed the similarity between him and the baby, which made her suddenly, which made her cry of shock. एक तरीके से वो चौंक से वो उसको क्राई करने पे विवश कर दिया. So you can write in this way. Okay? Yes, Yes, sir. The next question is question number 5. Desiree strongly protested the accusation of not being white. Desiree strongly protested. ये protest means क्या होता है? विरोध. प्रोटेस्ट में विरोध करना. प्रोटेस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं, रोड वगैरह पे प्रोटेस्ट करना, विरोध करते हैं. गवर्नमेंट की कोई योजनाएं आ जाती हैं तो जो विपक्ष है उसको प्रोटेस्ट करता है, उसको मतलब आंदोलन नाम दे दिया जाता है, लेकिन कहीं वो विरोध ही करते हैं उस योजनाओं का, किसी निर्णय का, किसी डिसीजन का. तो प्रोटेस्ट वर्ड उसी से लिया गया है. तो डेजरी स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड, जो डेजरी है बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से प्रोटेस्ट करती है. किसका प्रोटेस्ट करती है? प्रोटेस्ट द एक्यूजेशन. एक्यूजेशन मींस क्या हुआ? आरोप का, जो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं. कौन सा आरोप? एक्यूजन ऑफ नॉट बीइंग व्हाइट. जो ये आरोप कि वो व्हाइट नहीं है, इस आरोप का बहुत ही स्ट्रांगली वो खंडन करती है, वो विरोध करती है, मना करती है. However, मैडम बॉलमुंडे डिड नॉट. लेकिन हालांकि मैडम बॉलमुंडे डिड नॉट, मैडम बॉलमुंडे ने ऐसा नहीं किया. वहां पे डेजरी जो है वो तो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट की, लेकिन मैडम बॉलमुंडे ने ऐसा नहीं किया. She readily accepted it and asked Desiree to come back home. उन्होंने स्पष्टता ये एक्सेप्ट किया, मैडम बॉलमुंडे ने स्पष्टता इस बात को एक्सेप्ट किया और डेजरी को अपने घर वापस बुलाया अपनी उसकी बेबी के साथ. Why? क्यों? बताइए अभिषेक. Sir, Madam Walmonde readily accepted it and asked Desiree to come back home because she did not know her origin and Desiree was from unknown origin. Okay. Muskan? Said Desiree strongly protested the accusation of not being white, but Madame Walmonde accepted it and asked Desiree to come home back because Madame Walmonde did not know from which origin Desiree belongs. Okay. Abhishek Pandey, do you also want to give the answer? Yes, sir. Sir, Madame Walmunde accepted it and asked Desiree to come back home because he did not know
that the desired origin. Okay, actually Madame Balbunde herself, she was not confirmed the origin of the desire. तो desire की origin है वो उन्हीं को नहीं कंफर्म था कि whether the desire is belong to the white category people or black category people, उनको स्वयं नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि वो ब्लैक पीपल से भी बिलोंग कर सकती थी, व्हाइट से भी। जब कोई पढ़ी हुई बच्ची थी तो उसके स्किन के कलर से नहीं मतलब रखता, लेकिन किस ओरिजिन से आई है तो वो तो फिलहाल कंफर्म ही नहीं थी। तो इस वजह से जो इस चीज में कंफर्म ना हो तो वहां पे हाँ मजबूती से आपको कैसे विरोध कर सकती थी। बट ये बातें कहने के डेजरी को नहीं पता था। डेजरी को तो यही पता था कि मेरा स्किन मतलब फेयर है, मेरे माता पिता का स्किन फेयर है, वो व्हाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो आई ऑल्सो बिलोंग टू द व्हाइट कैटेगरी, ऐसा ही था। इस वजह से डेजरी ने तो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, बट उसके माता मैडम बॉलमुंडे ने ऐसा नहीं किया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैडम बॉलमुंडे नोस दैट ही मे बी द डेजरी is not belong to the white category, but Desirees did not know the origin, the past, whatever, it did not confirm that whether it is belong to the black or white category. So question number 5 के लिए जो आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें आप फिलहाल एक बड़ा सा आपकी स्टोरी आपकी बुक से अगर इसको निकाला जाए आंसर, तो इसमें बहुत ही लंबा एक्सप्लेन भी किया गया है। The story does not mention whether Desiree was aware of her origin or not. सबसे पहली बात स्टोरी में ये नहीं मेंशन किया गया है कि डेजरी क्या अवेयर थी अपने ओरिजिन के बारे में या नहीं। ये तो कहीं नहीं मेंशन है ना कि और कि डेजरी को पता हो कि वो ब्लैक कैटेगरी से है या नहीं, व्हाइट कैटेगरी से है या नहीं। However, हालांकि लास्ट में in her letter to Madame Balmunde, she asked her to tell Armand that she is indeed white. और वो मैडम बालमुंडे को एक तरीके से कहती हैं कि अरमन को ये बताया जाए कि वो मतलब जन्म से ही व्हाइट है। दिस प्रोबेबली मींस दैट दो शी न्यू दैट द बालमुंडे वर नॉट द रियल पेरेंट्स, शी वाज नॉट अवेयर ऑफ हर अनसर्टेन ओरिजिन। दिस प्रोबेबली मींस दैट दो शी न्यू दैट द, इसका मतलब एक तरीके से मुझे देखो स्टोरी पढ़ने के बाद एक तरीके से ये लगता है कि शायद ये भी कहीं स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है कि क्या उसको पता भी चल पाता है कि जो उसके पेरेंट्स है उसके रियल पेरेंट्स हैं या नहीं, ये डेजरी को पता रहता या नहीं। क्योंकि जब वो उसको पाते हैं मैडम बालमुंडे और उनके हस्बैंड, तब तो छोटी बच्ची थी। जब ये बड़ी होती है तो शायद इसको भी ना, इसको पता ही ना हो कि जो मैडम बालमुंडे इज नॉट हर रियल पेरेंट्स। तो ये भी तो हो सकता है। तो वी कैन से दैट कि डेजरी वाज नॉट अवेयर its origin, and even it is not mentioned in the story that she was not aware, maybe she was not aware that whether their parents are the real parents or not. But as per the story, Madame Balmunde found Desiree from the stone pillar, so Madame Balmunde was also not confirmed that to which category does Desiree belong, whether it is white category or black category. Okay? Yes, sir. Yes, sir. The next question is question number 6. Why did Armand think that Almighty God had dealt truly and unjustly with him? Do you agree? क्या आप इस बात से सहमत हैं? There is 2 questions, not single. आपको ये नहीं बताना है कि आपको एग्री है या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। The first question is, why did Arman think? Arman आखिर ऐसा क्यों सोचता है that Almighty God had dealt cruelly and justly with him? Almighty God, Almighty means होता है सर्वशक्तिशाली, यानी जो परमेश्वर है, भगवान है, वो उसके साथ बहुत ही क्रूरता से उसने व्यवहार किया है या उसके साथ अन्याय किया है। ऐसा अरमन क्यों सोचता है, ये बताइए, कौन बता सकता है? बताइए।
Arman think that Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him because at the end he knew about that he belongs to the black category, but in starting he didn't know that I am from the black category. Okay, Muskan. Sir, Armand think that Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him because when he says Desiree that you are not white, then then he think that God had did wrong with me. Abhishek Pandey. So the Arman think that Almighty God had default cruelly and unjustly with him because he belongs to black category. He belongs to black category. होता क्या है एक्चुअल में white people considered the blacks the white people considered the blacks inferior to them and enslaved them. White people considered the blacks inferior to them and enslaved them. We know that Arman, unlike his father, हमने स्टोरी में पढ़ा कि that की already we have learned that कि we know that Arman, unlike his father, Arman अपने पिताजी के की तरह के बजाय thought that blacks were beneath him and treated him harshly. जो ब्लैक पीपल है वो एक तरीके से निम्न कैटेगरी से आते हैं और उनसे बहुत ही हार्शली बिहेव करता था. He thus thought it was unfair that his own wife, और ये इस तरीके से he thus thought it was unfair, इस तरीके से वो ये सोचता है कि ये unfair हुआ. that क्या unfair हुआ कि his own wife and child has turned out to be a black. उसकी जो खुद की वाइफ और बच्चे हैं वही ब्लैक निकले. ये तो वही बात हुआ ना कि कोई पुलिस वाला है उसके घर में ही चोर निकल जाए, कोई बड़ी बड़ी ज्ञान दे ईमानदारी की और उसका खुद का बच्चा चोर निकल जाए, तो ये तो उसको तो बुरा लगेगा. वो लगेगा कि नहीं मैं तो कभी गलत नहीं किया, मैं लोगों की अच्छाई लोगों को. तो फिलहाल ये तो बात की बात है. फिलहाल अरमान वाज नॉट राइट एट द एंड. वो अपनी जगह पे बिल्कुल भी नहीं सही था. क्यों नहीं सही था हम लोगों ने स्टोरी में लास्ट में पढ़ा है. पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीखा है. So the next question is, why do you think Arman mothers never left her own country? The next question is, why do you think Arman's mother never left her own country? ऐसा आपको क्यों लगता है कि अरमान की माता जी ने अपनी खुद की कंट्री को नहीं छोड़ा? What is the answer of this question? Abhishek. So I think Arman's mother never left her own country because she loves her country, and after dying she was buried at that place. एक्चुअल में होता क्या है, जो उसकी मदर हैं वो स्वयं नहीं चाहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूं या फिर अपनी कंट्री से छोड़ करके यहाँ पे आकर के रहूं बच्चों के साथ में, कि बाद में कहीं अरमान के लिए दिक्कत ना हो जाए. Arman's mother never left her own country because she did not want anyone, especially her son, to know that she was black. वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी ये जान सके कि वो ब्लैक है, स्पेशली उसका बच्चा ही ना जान पाए. She knew that if this secret were to come out, वो ये जानती थी कि अगर ये secret बाहर आएगा तो her son would become a subject of ridicule in the society. जो उसका जो बच्चा है, जो अरमान है, वो एक रेडिकुल वाला हंसी का पात्र बन जाएगा सोसाइटी में. समाज में लोग उसके ऊपर हंसेंगे एंड वुड नॉट बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को शायद वो लीड ना कर सके, जी ना सके. इस वजह से उसकी मदर, ये आपकी स्टोरी में दिया हुआ है लास्ट में, ये स्टोरी में लिखा है. क्या लिखा है? Arman's mother never left her own country because she did not want anyone, especially her son, to know that she was black. She knew that if this secret were came out, if this secret were to come out, her son would come a subject of ridicule in the society.
and would not be able to lead a normal life. That's it for okay. Yes, sir. Now the last question from section B is, did Arman really want Desiree to leave? क्या अरमान सच में ये चाहता है, डेजरी को छोड़ना चाहता है? Did Arman really want Desiree to leave? क्या अरमान सच में डेजरी को छोड़ना चाहता है? Support your answer with evidence from the story. आपको आंसर सपोर्ट, आपको लगता है अगर यस, तो जो भी एविडेंस स्टोरी में दिए गए हैं उस एविडेंस को बताते हुए, उस सबूत को बताते हुए, उस लाइन को बताते हुए आप बताइए यस या नो. द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड अरमान रियली वांट डेजरी टू लीव? क्या अरमान सच में डेजरी को छोड़ देना चाहता है? यस या नो? Yes, sir. अभिषेक पांडे, Yes, sir. हाउ, मतलब सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस, ऐसा मतलब कौन सी लाइन से आपको लगता है? So when Desiree asked that can I go, then he said that yes you can go. ओके, जब वो दोबारा पूछती है तब वो बोल देता है कि हाँ आप जा, तुम जाओ. Yes, sir. तो इस वजह से तुम्हें लगता है कि अरमान रियली वांट डेजरी टू लीव. ओके, अभिषेक पांडे, व्हाट इज योर आंसर? The same. The same answer. Yes, it is the correct answer. Yes, मुझे भी लगता है कि yes, Arman wanted her to leave him and go. मुझे भी ऐसा लगता है स्टोरी पढ़ने के बाद कि अरमान जो है डेजरी को छोड़ देना चाहता है और उसको जाना, वो चली जाए, वो उसके मन में, या वो ऐसा चाहता है. बिकॉज देयर आर मेनी लाइन्स इन द स्टोरी. आपके स्टोरी में एक नहीं कई सारी लाइनें ऐसी हैं जो इस थॉट को सपोर्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, when Desiree asks him, he clearly says that he wants her to leave. जब डेजरी पूछती है तब वो क्लियरली बोलती है कि हाँ तुम जाओ. यही आप दोनों भी बता रहे हैं. Yes, it is the correct answer. It is also mentioned that he did not love her anymore. ये स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है कि अब धीमे धीमे उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि he didn't love her anymore. वो उससे अब और ज्यादा प्रेम नहीं करता था. A close reading of this story also reveals that. जब इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ें और थोड़ा सा और भी अंदर आप जा करके महसूस करने की कोशिश करें, then this story also reveals that. ये स्टोरी एक और बातें रिवील करती है. क्या? Arman was aware of the pain he was causing her, but still did not change his decision. अरमान को जो डर था, जो ना करने के बाद जो मतलब डेजरी को जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उस पेन को अरमान समझता था. इसके बावजूद भी वो अपना डिसीजन नहीं बदला. These things tell us that कि अरमान really wanted her to go. अरमान really wanted to leave her to leave. So in this way we have completed all the questions. So now let us move ahead on the section C. In the section C, there is the first question. Heartbroken at Arman's reaction. Heartbroken at Arman's behavior. Excuse me. First question. Heartbroken at Arman's reaction. जो अरमान का रिएक्शन है वो बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला था, बहुत ही हृदय विदारक था. Desiree walks away with her child towards the bayou. जो एक तरीके से मतलब बहुत ही सुनसान वाली क्षेत्र में, मतलब जो अपने बच्चे के साथ जो डेजरी है वो उस घर से दूर चली जाती है. What do you think happened? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा to them after that? उसके बाद क्या हुआ होगा? अभिषेक. Yes, sir. So heartbroken at Arman's reaction, Desiree walks away with her child toward the bayou. I think she died after that. इसमें कुछ भी हो सकता है. ये तो नहीं कहीं क्लियरली मेंशन है कि डेजरी खत्म हो गई होती है या मर गई होती है. क्या ये मेंशन है क्लियरली? फिलहाल नरेशन के समय मैंने बताया था कि वो वहां से फिर कभी नहीं दिखी. इसका मतलब वो शायद खत्म ही हो गई. लेकिन क्या ये मतलब ये लाइन तो कहीं नहीं लिखी है ना, ये लाइन तो कहीं नहीं लिखी है कि डेजरी खत्म हो गई. हो सकता है डेजरी हर एंड हर बेबी आर टेकन इन बाय काइंड ऑफ फैमिली. जो डेजरी और उसके
बच्चे को कोई काइंड फैमिली मिल गई हो, एक कोई दयालु परिवार मिल गया हो, जैसे मूवीज वगैरह में होता है। भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं Yes. क्लियरली मेंशन है कि वो खत्म हो गई। हो सकता है कि किसी का साथ मिल गया हो, किसी की दया दृष्टि उस पर पड़ गई हो, और वो अपने घर पे लुक आफ्टर देम फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, कुछ दिनों के लिए हो सकता है उसका ख्याल किए हो। उसके बाद क्या हुआ होगा, डेजरी स्टार्ट्स वर्किंग एज ए गवर्नेंस, डेजरी स्वयं से काम करना शुरू की होगी। क्या किसी के अगर घर में मान लीजिए अगर कोई महिला है और उसका बच्चा है, तो क्या वो नहीं सर्वाइव कर सकते? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती है, वो स्वयं कर खा सकती है, भगवान ने उसको भी दो हाथ दिए हैं। तो डेजरी स्टार्ट वर्किंग एज ए गवर्नेंस टू सपोर्ट हरसेल्फ एंड हर बेबी। जब उसके बाद क्या हुआ होगा, बेबी बड़ा हो गया होगा। द बेबी ग्रोज अप टू बी अ काइंड, टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। व्हेन ही फाइंड्स आउट अबाउट द फादर, he tries to find him but his father is gone, लेकिन उसके पिताजी शायद चले गए, उसके अपने पिताजी को। तो many things can be, अब it is on you that कि how, what do you think, क्या हुआ होगा जब जो अरमान का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन था, जो डेजरी है वो उससे काफी दूर चली जाती है। What do you think, आखिर आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा आफ्टर दैट? अब it is on you that कि how you can write your answer, what do you think? सो एक तो तरीका मैंने बता दिया कि हाँ वो जिंदा रही होगी। एक ऐसा भी आंसर हो सकता है कि मे बी वो भूख प्यास के मारा तड़प तड़प के बेचारी मर गई हो, ये भी तो हो सकता है। तो इट इज ऑन यू दैट कि हाउ यू टेक द, हाउ यू थिंक, एंड यू कैन राइट योर ओन व्यूज फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, इज, sir. हाउ डू यू थिंक अरमान फेल्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम हर मदर? हाउ डू यू थिंक अरमान फेल्ट, आप मतलब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि अरमान ने कैसा फील किया होगा आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम हर मदर? अभिषेक पांडे, कैसा लगा होगा? So Arman felt after reading the letter of her mother, he feels sad. फील सैड। ओके, अभिषेक यादव। Yes, sir. Sir, I think Arman started to regret after reading the letter from her mother. अब बिल्कुल वो उसको पछतावा हो रहा होगा। और एक बातें और है, वो बच्चा ब्लैक होने का रीजन शायद डेजरी नहीं हो सकता है। देखो माता या पिता कोई भी अगर दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो शायद हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। ये सब तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता, मतलब एक तरीके से जेनेरिक होता है, जेनेटिक होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उसको रियलाइज हुआ हो, ही वुड हैव रियलाइज दैट इट वाज ही एंड नॉट डेजरी हु वाज ब्लैक, कि वो स्वयं ब्लैक था ना कि डेजरी, जिसकी वजह से बेबी ब्लैक हो। He was probably left shattered, शायद वो चौंक गया हो, अचंभित भौचक्का रह गया हो, as he would have realized, हो सकता है आपने बोला ना कि he would have regretted what a grave injustice he had committed by letting Desiree and the baby go. वो डेजरीज को और अपने बेबी को ले जाने देना, मतलब उसको जाने देना उसके लिए कितना बड़ा, मतलब कितना गलत किया उसने, कितना इनजस्टिस किया। तो ये सब सोच करके उसको पछतावा हो रहा होगा। The last question is, at the end of the story, do you think Arman would still be of the opinion that Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him? Why not? At the end of the story, स्टोरी के अंत में क्या अरमान अभी भी ऐसा सोचता होगा कि Almighty God जो सर्वशक्तिशाली भगवान है, वो उसने उसके साथ गलत तरीके से मतलब अन्याय किया? क्या ऐसा अभी भी वो सोचता होगा? यस या नो? Yes, sir. Yes. कैसे यस, कैसे यस, ऐसा क्यों? 1 मिनट है, जल्दी से बोलिए। So because he knew all the things that he belongs to the black category at the end of all things that happened. कोई मतलब कोई आंसर तो आपने बोला नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान ने तो उसके पास सब कुछ अच्छा ही किया था। व्हाइट कैटेगरी की लड़की डेजरीस आ गई थी, ब्यूटीफुल भी थी, बच्चा भी उस था। अब वो तो स्वयं रीजन था कि जिसकी वजह से ब्लैक था, तो वो भगवान को क्यों दोषी माना? गलत तो उसने किया था अपने परिवार बिगाड़ने में, डेजरी है और उसके बच्चे को ले जाने में। फिलहाल ये आंसर आप हो सकता है आप लोग को अगर यस लगता है तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई लाइन लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज हाउ वी हैव